class. Okay. So regarding pain, I have taught you about pain. है ना? Introduction about pain. What are the signs and symptoms of pain? Then what else I have taught you? The causes of pain, signs and symptoms of pain. कौन-कौन सी टेस्ट हम कर सकते हैं पेन के लिए? Then also then the second section is the assessment of pain, है ना? So yesterday I taught you assessment of pain, how to assess the pain of the patient, subjective data, objective data. Then what are the different scales, or different standard scale to measure pain? Okay, so all those and the comprehensive pain assessment. Okay, so that also I have explained to you. Okay, so regarding the pain, introduction about pain, definition about pain, all these I have explained to you. Assessment of pain also I have explained. Now coming to the management. Okay, so we know what are the causes of pain, what are the factors that affects pain. ठीक है, हम कैसे assess कर सकते हैं patient को कैसे assess कर सकते हैं by two assessment, subjective assessment, objective assessment. ठीक है, what are the different test, diagnostic test हम patient के ऊपर कर सकते हैं. Okay, so all that I have explained. I hope there is no doubt, no issues regarding those topics. Yes, ma'am. Okay. So today I will come to the last section of pain, that is management of pain. ठीक है, और pain management. अगर pain है patient को, दर्द हो रहा है, तो हम कैसे manage कर सकते हैं? Okay, so today the topic for the class is pain management. Okay, so first we will see the definition of pain management. ठीक है, so the management of pain in the critically ill patient. Okay, suppose patient is suffering from cancer, है ना? कैंसर पेशेंट्स को बहुत ही सिवियर पेन होता है. ठीक है, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? Okay, so the management of pain in critically ill patient or who are very serious, who are in a very serious condition. ठीक है, it is as multi-dimensional as assessment. ठीक है, देखो assessment में क्या है, बहुत ही मतलब दो important dimensions है assessment में, एक है subjective और एक है objective, है ना? ठीक है, so even in management also बहुत ही it has many sections और it has many dimension, बहुत ही सारी topics है, बहुत ही सारी sections है, हम कैसे patient को manage कर सकते हैं. ठीक है, it can be the control of pain can be pharmacologic. Pharmacologic का मतलब है relating to medicine. ठीक है, कोई भी हम मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट को दे रहे हैं तो दैट इज फार्माकोलॉजिक. ठीक है, फार्माकोलॉजी इट कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर द रिलेटिंग टू द मेडिसिन. ठीक है, कोई भी दवाई हम पेशेंट को दे रहे हैं इंजेक्शन फॉर्म या ऑरल फॉर्म या जेल फॉर्म या लोशन फॉर्म और एनी अदर फॉर्म्स, दैट इज फार्माकोलॉजिक. ठीक है, ये एक डायमेंशन है. दूसरा डायमेंशन है नॉन फार्माकोलॉजिक, मतलब some other therapies other than medicine. ठीक है, तो I have taught you about hot application, है ना? hot application, cold application. ठीक है, तो hot application and cold application, इसका जो objective है, इसका goal है, वो क्या है? To reduce pain. ठीक है, तो वो therapies, hot application therapy या cold application therapy, ये सारा नॉन फार्माकोलॉजिक कैटेगरी में आता है. ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, देयर इज मसाज. ठीक है, बॉडी मसाज. देन देयर इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक, योगा. ठीक है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर. ठीक है, कपिंग, ये सारा थेरेपीज होते हैं विच वी डू नॉट नीड एनी मेडिसिन. ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी. ठीक है, एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो समटाइम्स क्या होता है कि जब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है पेशेंट या बहुत ही सीरियस कंडीशन वेयर पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन, वर्स्ट पेन, तो उस कंडीशन में हम दोनों भी मिक्स कर सकते हैं.
ठीक है, मेडिसिन भी दे सकते हैं और साथ साथ भी मसाज थेरेपी दे सकते हैं, या हॉट एप्लीकेशन, हॉट वाटर बैग दे सकते हैं पेशेंट को, या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ठीक है, और एनी हर्बल मेडिसिन वो भी हम दे सकते हैं पेशेंट को, दैट विल कम अंडर दी आयुर्वेद, ठीक है, आयुष. So a combo of medicines and combination of other therapies we can give to the patient in critical condition. ठीक है, so that is why it is called multi-dimensional. multi का मतलब है ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा मैनेजमेंट हम पेशेंट के ऊपर दे सकते हैं टू रिड्यूस पेन. ठीक है, वी कैन गिव मेडिसिन, वी कैन गिव थेरेपीज कैन कम मसाज थेरेपी, योगा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी. म्यूजिक से भी पेन रिलीफ हो जाते, रिड्यूस हो जाते, उनकी माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं, मसाज थेरेपी, हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, दीज आर ऑल नॉन फार्माकोलॉजिक. ठीक है, सो वी कैन कंबाइन, वी कैन गिव ओनली मेडिसिन टू द पेशेंट, या सिर्फ हम थेरेपीज दे सकते हैं, या वी कैन गिव कॉम्बिनेशन, मिक्स कर सकते हैं मेडिसिन भी और थेरेपीज भी. ठीक है, सो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मतलब मोर देन वन डायमेंशन, मोर देन वन मैनेजमेंट. ठीक है, सो द डेफिनेशन हियर इज मैनेजमेंट ऑफ पेन इन क्रिटिकली इल पेशेंट इज एज मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, एज द असेसमेंट. ठीक है, जैसे असेसमेंट की तरह, असेसमेंट में बहुत सारा डायमेंशंस है ना, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, सब्जेक्टिव असेसमेंट. सेम विथ मैनेजमेंट भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं. ठीक है, मेडिसिन हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, ठीक है, मसाज थेरेपी हो गया, ये सारा डायमेंशंस है. ठीक है, सो इज दिस क्लियर विद द डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेन? किसी को डाउट है? Anybody has any doubts? No, ma'am. Okay. So, according to WHO, can anyone tell me what is WHO? ये एग्जाम में भी आए थे, fill in the blanks में. Ma'am, World Health Organization. अच्छा, World Health Organization. Some of you did not write anything, blank ही छोड़ दिया. ठीक है. So, so WHO. ठीक है, WHO is the full short form for World Health Organization. Okay, so according to World Health Organization, उन्होंने एक standard management या एक standard steps बनाए हैं. ठीक है, this is the WHO 3-step ladder. ठीक है, तो इसमें 3 steps होते हैं. It is like a ladder, मतलब एक step, then coming to the next step, then third step. ठीक है, so WHO analgesic या pain relief ladder. Analgesic, it is a medicine. ठीक है, it is a agent of medicine. So according to WHO, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 3 steps होंगे. ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप होता है, एक सेकंड स्टेप और एक थर्ड स्टेप. ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेप हम पेशेंट्स को, ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं पेशेंट को, वी विल गिव इन माइल्ड टू मॉडरेट पेन. ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन. देन सेकंड स्टेप या स्टेप नंबर 2, ये जो मेडिसिन इसके अंदर है वो हम पेशेंट्स को देंगे जिस पे मॉडरेट टू सीवियर पेन है. ठीक है, एंड स्टेप नंबर 3 वी विल गिव टू सीवियर पेन या वर्स्ट पेन. ठीक है, जहां पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते पेन लेवल को. सो दीज आर द 3 स्टेप्स. ओके, सो स्टेप नंबर 1 वी विल गिव माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हल्का सा पेन. देन स्टेप 2 वी विल गिव मॉडरेट टू सीवियर पेन. एंड थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 वी विल गिव इन वर्स्ट पेन या सीवियर पेन, सबसे मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन. ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेप कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी ड्रग्स हम दे सकते हैं पेशेंट को? एक है नॉन ओपियोइड्स. ठीक है, नॉन ओपियोइड्स के अंदर आते हैं एस्पिरिन. ठीक है, टैबलेट एस्पिरिन. फिर NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. ये जो मेडिसिन है NSAIDs, ठीक है, ये स्टेरॉइड्स नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट स्टेरॉइड्स. ओके, और वी कैन गिव पैरासिटामोल
ऑल्सो पैरासिटामोल, इसका 2 फंक्शन है। पैरासिटामोल हम देते हैं जब पेशेंट को फीवर है ना, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है, एंड ऑल्सो वी कैन गिव इफ पेशेंट इज हैविंग पेन। ठीक है, सो पैरासिटामोल का 2 फंक्शन है, एक है पेन को रिलीव करते हैं और दूसरा है फीवर को रिड्यूस करते हैं। So we can give paracetamol, we can give NSAIDs, medicines, and we can give aspirin also. ठीक है, these are non-opioids. ठीक है, so ये जो medicines है ये किसके अंदर आते हैं? स्टेप नंबर 1. ठीक है, और हम कौन से पेशेंट्स को देंगे जिसपे माइल्ड टू मॉडरेट पेन है? ठीक है, इज दिस क्लियर विद द फर्स्ट स्टेप? किसी को डाउट है? मैम स्टेरॉइड और एनेस्थीसिस मेडिसिन मैम कहाँ पे यूज होगा मैम? एक बार फिर से बता देना। कौन सा? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स, हाँ जी, स्टेरॉइड्स। देखो स्टेरॉइड्स क्या है कि ये जो स्टेरॉइड्स है, दीज आर दे हेल्प इन इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अगर बॉडी या अगर टिश्यूज में इंजरी हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, एंड स्टेरॉइड्स में बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन स्टेप नंबर 1 पे हम नॉन स्टेरॉइड, मतलब दीज आर नॉट स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड्स नहीं है। ठीक है, दे आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये नॉन स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स नहीं है, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये अलग कैटेगरी है। ठीक है, सो NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये जो मेडिसिन है ये स्टेरॉइड्स नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन, अगर इंजरी हो गया बॉडी में तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो वी कैन गिव NSAIDs, और इसका दूसरा फंक्शन है ये पेन को भी रिलीव करते हैं, तो वी विल गिव NSAIDs क्योंकि पेन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एस्पिरिन, वी नो दैट एस्पिरिन पेन को रिड्यूस करते हैं, एंड ऑल्सो पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का 2 फंक्शन है, एक है वो पेन को रिड्यूस करते हैं और दूसरा फीवर को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो वी कैन गिव दिस मेडिसिन इन स्टेप नंबर 1, दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट पेन में दे सकते हैं। ठीक है, यस मैम। देन कमिंग टू स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में वी विल गिव इन मॉडरेट टू सीवियर पेन। ठीक है, सो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हम देंगे? माइल्ड ओपियोइड्स, एग्जाम्पल कोडीन। ठीक है, विथ और विदाउट नॉन ओपियोइड्स। सो हियर द मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कोडीन। ठीक है, ये ओपियोइड्स है। ओपियोइड्स मतलब दीज आर सम इलीगल ड्रग्स। ठीक है, जिसमें एडिक्शन होता है। ठीक है, 1 बार 2 बार ले लिया तो एडिक्शन हो जाते हैं इस ड्रग्स में। सो दीज आर कॉल्ड माइल्ड ओपियोइड्स। ठीक है, देन कमिंग टू द थर्ड स्टेप, दैट इज सीवियर पेन। सबसे वर्स्ट पेन, सबसे मतलब अनटॉलरेबल पेन। ठीक है, दैट इज सीवियर पेन। तो उस कंडीशन में हम देंगे स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बहुत उसमें क्या होता है, बहुत ही एडिक्शन हो जाते हैं। मॉर्फिन। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज हर्ड ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, सो मॉर्फिन इज अ स्ट्रॉन्ग ओपियोइड। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स। और जब हम पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं या कोई भी लोग जब मॉर्फिन इंजेक्शन लेते हैं तो उसकी एडिक्शन हो जाते हैं, बहुत ही खतरनाक एडिक्शन। ठीक है, सो यू मस्ट हैव हर्ड ड्रग एडिक्शन, है ना, ड्रग एडिक्शन सेंटर। ठीक है, तो सो पेशेंट्स हु आर वेरी एडिक्टेड टू ड्रग्स, ठीक है, मॉर्फिन, और पेशेंट्स आर एडिक्टेड टू कोडीन। ठीक है, ड्रग एडिक्शन हो जाते हैं कि बिना मॉर्फिन, है ना, ऐसे अजीब से बिहेवियर शुरू होता है, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज एडिक्शन। सो वी विल गिव मॉर्फिन इन केस ऑफ ओनली सीवियर पेन। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू WHO 3 स्टेप लैडर। ठीक है, पहले स्टेप 1 से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर स्टेप 3 तक जाते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so now coming to nursing care. ठीक है, so what is the role of a nurse in pain management? क्या responsibilities हैं? ठीक है, what is the role of a nurse? ठीक है, number 1,
पेन असेसमेंट, ये तो मैंने समझा दिया है। सब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, दोनों असेसमेंट कंप्लीट करना है बाय द नर्स। शी शुड डू द असेसमेंट। नंबर 2, आइडेंटिफाई द गोल फॉर पेन मैनेजमेंट। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन प्लान। ठीक है, वी कैन प्लान कि हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के साथ, क्योंकि पेशेंट इज हैविंग सिवियर पेन और पेशेंट इज हैविंग मॉडरेट पेन या माइल्ड पेन। ठीक है, देन नंबर 2, आइडेंटिफाई इंटेंसिटी ऑफ पेन। पेशेंट की जो पेन लेवल है वो कितना है, वर्स्ट पेन है, मॉडरेट पेन है या माइल्ड पेन है, वो हम कौन सा स्केल यूज कर सकते हैं, पेन स्केल। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स है ना, वॉन्ग-बेकर स्केल भी है, पेन न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल है, विजुअल एनालॉग स्केल है, वर्बल रेटिंग स्केल। ठीक है, ये तो 4 स्केल्स हैं, ये हम पेशेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं टू नो द पेन लेवल, पेन इंटेंसिटी। फिर ड्यूरेशन ऑफ पेन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेन एंड आर सम ऑफ द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द गोल फॉर पेन मैनेजमेंट। ठीक है, सो एज अ नर्स यू शुड नो इंटेंसिटी, पेशेंट को माइल्ड पेन है या मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन। ठीक है, देन नंबर 2, नर्स को पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन। ठीक है, 1 घंटे के लिए पेन हो रहा है पेशेंट को, या 2-3 घंटे, या 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते हुआ है पेशेंट को पेन हुआ है, तो दैट इज अ ड्यूरेशन। ओके, एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेन। ठीक है, पेन के साथ साथ क्या बिहेवियर चेंज हुआ है, क्या मतलब उनकी मूड स्विंग्स हो रहा है या नहीं, सो दीज आर ऑल सम हार्मफुल इफेक्ट्स। ओके, सो बाय चेकिंग ऑल दीज, बाय आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स, हम प्लान कर सकते हैं पेशेंट के लिए कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है या सिर्फ मसाज की ज़रूरत है या सिर्फ म्यूजिक थेरेपी या योगा की ज़रूरत है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स पेन। Then third, nurse should establish a nurse-patient relationship. ठीक है, जो communication है वो अच्छी तरह से मतलब there should be a good communication with the nurse and the patient. ठीक है, verbal communication, ठीक है, good communication maintain होना चाहिए. Okay. Then number 3, provide patient teaching regarding pain and strategy to relieve it so that they can do at home. ठीक है, सो अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से तो हमें उनको समझाना है कि पेशेंट मतलब अगर दोबारा पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं घर में। ठीक है, दे कैन डू सम योगा, दे कैन डू सम, दे कैन हैव सम म्यूजिक थेरेपी। ठीक है, और दे कैन डू सम अदर थेरेपीज, हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हैं या कोल्ड पैक्स यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टीच टू द पेशेंट। ठीक है, then provide physical care to the patient who are not able to perform daily activity. ठीक है, अगर पेशेंट बहुत ही सीवियर पेन है, ठीक है, पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन इन द बॉडी, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पेन की वजह से पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रश देयर टीथ। ठीक है, ऑरल हाइजीन मेंटेन ही नहीं किया पेशेंट ने, क्योंकि पेशेंट को बहुत ही खतरनाक पेन है। तो एज अ नर्स वी शुड डू द एक्टिविटी, वी शुड डू द ऑरल हाइजीन। ठीक है, माउथ केयर देना है पेशेंट को, पेशेंट की जो इनकी जो टीथ है उनको ब्रश करना है, पेशेंट की जो गम्स है वो अच्छी तरह से क्लीन करना है, टंग को क्लीन करना है। तो वी शुड मेंटेन, वी शुड परफॉर्म ऑरल केयर और माउथ केयर टू द पेशेंट। ठीक है, और एनी अदर केयर ऑन द बॉडी, वी कैन गिव बेड बाथ, है ना, वी कैन गिव बैक केयर टू द पेशेंट। ओके, चेंज द पेशेंट्स क्लोथ्स, पेरिनियल hygiene we can perform on the patient. Okay, so all these we can do to the patient. Okay, if patient is not able to do daily activity, then we have to manage the anxiety which is related to pain. ठीक है, तो पेशेंट को, अगर पेशेंट को पेन है तो उनकी पेशेंट को स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो एज अ नर्स हमें क्या करना चाहिए, वी कैन डाइवर्ट देयर माइंड, है ना, पेशेंट की जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग सम एक्टिविटी ऑन द पेशेंट, है ना, वी कैन गिव द पेशेंट सम नॉवेल्स, बुक्स दे सकते हैं, वी कैन पेशेंट को हम गेम्स मतलब लाइक इंडोर गेम्स पे इंडल्ज कर सकते हैं, या वी कैन टेल द पेशेंट टू वॉच सम टीवी, लिसन टू सम म्यूजिक। सो ये इससे क्या होगा, पेशेंट की जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम द पेन।
Then help to relieve the pain by administering pain relieving intervention. So we can give medicines. अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि ये वाला मेडिसिन देना है पेशेंट को, so we have to give the specific medicine, specific dose, specific route, right patient, right drug, right route, ठीक है, right dose, ठीक है. So all these you should follow. Then as a nurse you have to assess the effectiveness. देखना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को जो पेन लेवल है वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ठीक है. तो ये हमें चेक करना, वी शुड चेक द इफेक्टिवनेस. देन मॉनिटर द साइड इफेक्ट्स. ओके, साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, क्योंकि हमें पता है कि मेडिसिन की जो हर मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो वी हैव टू चेक फॉर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द roles and responsibilities of a nurse, okay, when we have to manage the pain of the patient. Is this clear with nursing care? किसी को doubt है यहाँ तक? No, ma'am. Okay, so now coming to the pain management. Okay, so I told you pain management multi-dimensional है, ठीक है. मतलब एक ट्रीटमेंट से मतलब there are more therapies, more techniques of reducing pain, ठीक है. एक है फार्माकोलॉजिकल और दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है. तो फार्माकोलॉजिकल रिलेटिंग टू मेडिसिन, ठीक है. सो व्हेनेवर यू से फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, रिमेंबर मेडिसिन्स, ठीक है. सो इन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन इट इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक मेडिसिन or may insert IV line for giving analgesic medicine. So in pharmacologic intervention जो हम medicines दे रहे हैं, pain killers हम दे रहे हैं, we can give oral form, tablet form, or we can give in capsule form, or we can give in IV form, ठीक है, through the veins, or we can give in IM also, ठीक है, into the muscles, ठीक है. So there are so many medicines. Okay, so analgesic medicine, analgesic, whenever you see analgesic, remember it reduces pain, ठीक है. So there are agents which are used to treat pain. So the general categories of analgesic agent, ठीक है. तो analgesic agents या analgesic medicines ये क्या करते हैं, ये पेन को रिलीव करते हैं, ठीक है. So these are the medicines which relieves pain. और इन मेडिसिन के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं. एक है ओपियोइड्स, ठीक है. सो ओपियोइड्स जैसे मैंने बोला है मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन इज एन ओपियोइड. कोडीन ऑल्सो, दीज आर ओपियोइड्स, ठीक है. सो ओपियोइड्स कैन बी गिवन ऑरली, मतलब टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, और वी कैन गिव IV, मतलब इनटू द वेन्स, ठीक है. हम सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं. Then we can give intraspinal also, in going into the spine. Then intranasal, मतलब वो nose drops, nose spray, ठीक है. We can give rectal in the form of suppositories, and transdermal patch, वो मैंने समझाया है. I have taught you about the direct application of medicine, ठीक है. So उस टॉपिक में एक टाइप है that is transdermal patch, ठीक है. जैसे बैंडेड होते हैं, हम उस पैच को जहाँ पे भी पेन है वहाँ पे हम लगा सकते हैं एंड इट विल रिड्यूस द पेन, ठीक है. वी कैन ऑल्सो गिव IM इनटू द मसल्स, ठीक है. सो IM रूट, द मोस्ट प्रिफर्ड रूट इज द oral route. So the best route for reducing pain or for giving medicine to reduce pain is by mouth, ठीक है, in the form of tablet, in the form of capsule, ठीक है, और in the form of syrup also, ठीक है. So these are opioids. Okay, some example of opioids are injection morphine, injection codeine, injection oxycodone, meperidine, propoxyphene, hydrocodone, and tramadol, ठीक है. So these are some of the medicine, ठीक है, these are under opioids, ठीक है. और ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही एडिक्टिव मेडिसिन है, ठीक है. पेशेंट्स को क्या हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाते हैं, ठीक है. सो दीज आर ओपियोइड्स. देन नंबर 2 इज NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स,
ठीक है। सो ये जो मेडिसिन है ये स्टेरॉइड्स नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इसका फंक्शन क्या है, ये पेन को रिड्यूस करते हैं और दूसरा है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। सो सच मेडिसिन, एग्जाम्पल ऑफ NSAIDs जैसे इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक सोडियम या इंजेक्शन वोवरॉन, ठीक है, या टैबलेट वोवरॉन, ठीक है, दीज आर NSAIDs. Then ब्रूफीन, I think everyone has seen ब्रूफीन, it is pink color, ठीक है। So ibuprofen or ब्रूफीन tablet, these are non-steroidal anti-inflammatory drugs, okay. So these are the this is the second category. फिर आते हैं लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक या लोकल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एनेस्थेटिक्स मेडिसिन हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी नर्व फाइबर्स को स्टॉप करते हैं फ्रॉम वर्किंग, ठीक है, उनको ब्लॉक करते हैं नर्व्स को, ठीक है। सो लोकल एनेस्थेटिक इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग नर्व कंडक्शन व्हेन अप्लाइड डायरेक्टली टू द नर्व फाइबर्स, ठीक है। सो हमारे बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है। सो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, जब हम पेशेंट्स को देंगे मेडिसिन तो अब जो पेशेंट्स की नर्व्स है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। जब ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो पेशेंट को विल नॉट फील द पेन, पेशेंट को नमनेस फील होगा, ठीक है। दे विल नॉट फील एनीथिंग, नो फीलिंग ऑफ पेन, नो फीलिंग ऑफ टच, नथिंग, ठीक है। सो दे कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द साइट ऑफ इंजरी और डायरेक्टली टू द नर्व फाइबर्स, ठीक है। So such example will be injection lignocaine, ठीक है। तो lignocaine injection it is a local anesthetic medicine, ठीक है। And the fourth type is TCA, tricyclic antidepressant agent, ठीक है, tricyclic antidepressant agent. Okay, so these medicines they reduce depression, ठीक है। So when patient is in pain, ठीक है, अगर पेशेंट को पेन है तो बिकॉज ऑफ पेन पेशेंट विल हैव स्ट्रेस, है ना, पेशेंट डिप्रेस हो सकता है। सो वी कैन गिव सम एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जहां हम पेशेंट की जो डिप्रेशन लेवल है वो हम कम कर सकते हैं। सो दोज मेडिसिन आर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट एमिट्रिप्टाइलिन, टैबलेट इमिप्रामिन, ठीक है। सो दीज आर द मेडिसिन विच आर ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन लेवल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्ट इज एंटी सीजर एजेंट, ठीक है। एंटी सीजर एजेंट जैसे इंजेक्शन फिनाइटोइन, इंजेक्शन कार्बामेज़ेपिन, ठीक है, ये हम देते हैं जब पेशेंट को सीजर्स होते हैं, ठीक है। सो वी कैन गिव दीज इन स्मॉल डोज, ओके, फॉर सीजर्स, ठीक है। एंटी सीजर एजेंट्स हम सीजर्स को देते हैं एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट मेडिसिन हम डिप्रेशन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, ठीक है। सो these are some of the medicines or pharmacological agents that can reduce pain. Is this clear with the agents used to treat pain? किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. Okay, now coming to the non-pharmacologic intervention, मतलब apart from medicine, ठीक है। अगर पेशेंट को माइल्ड पेन है, हल्का सा पेन है, तो समटाइम्स क्या होता है कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट कैन हैव अदर थेरेपीज, ठीक है, उनको अलग से थेरेपीज हम दे सकते हैं, जैसे लाइक मसाज, ठीक है, मसाज थेरेपी, ठीक है। सो मसाज करने के बाद पेशेंट को क्या होगा, दे विल फील बेटर, ठीक है, जो पेन है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेडेक हो रहा है, ठीक है। सो क्या होता है, सम पीपल क्या करते हैं कि जब हेडेक होता है तो वो मेडिसिन नहीं लेते, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी को बोल देते हैं, मम्मी पापा को बोल देते हैं या एनी फैमिली मेम्बर्स को बोल देते हैं कि मेरी हेड मसाज कर लेना, ठीक है। सो बाय डूइंग मसाज इन द हेड, बाय डूइंग मसाज ऑन द बॉडी, ठीक है, तो जो पेन है वो कम हो सकता है। देन द सेकेंड इज थर्मल थेरेपी, ठीक है। थर्मल थेरेपी जैसे हीट एप्लीकेशन,
हॉट वाटर बैग, जब अब्डोमिनल पेन होते हैं, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, बैक एक हो रहा है ना, तो हम क्या लगाते हैं, हॉट वाटर बैग भी लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, देयर विल बी vasoconstriction एंड patient will reduce pain. Then there is transcutaneous electrical nerve stimulation, ठीक है। ये एक डिवाइस होते हैं, आई विल शो इन द पिक्चर, ठीक है। ये एक डिवाइस होते हैं जहां हम पेशेंट के ऊपर लगा सकते हैं, एंड विद दैट डिवाइस, एक डिवाइस, उसकी वजह से पेशेंट की जो पेन लेवल है वो कम हो सकता है। देन डिस्ट्रैक्शन, माइंड डाइवर्ट करना, ठीक है। माइंड डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन बाय डूइंग सम एक्टिविटी, है ना, पेंटिंग कर सकते हैं, या वी कैन डू सम क्या बोलते हैं उसको, स्यूइंग, स्टिचिंग, है ना। देन सो मेनी एक्टिविटीज, ठीक है, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, ये सारा डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स होते हैं। देन रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्स करना है ना, वी कैन डू बाय योगा, ठीक है। योगा से क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, मेंटल पीस मिल जाते हैं, एंड पेशेंट इज रिलैक्स्ड, ठीक है। एंड द अदर इज प्रॉपर रेस्ट, बेड रेस्ट, ठीक है। अगर पेशेंट को पेन है तो बोलते हैं ना कि आप रेस्ट कर लो, ठीक है। सो वी टेल द पेशेंट टू टेक रेस्ट, बेड रेस्ट. Then there is a hypnosis. Hypnosis also another technique where we can divert the mind of the patient. Then number 7, music therapy. Music से भी pain reduce हो सकता है, ठीक है। म्यूजिक क्या करते हैं, ये हमारी माइंड को डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम द पेन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. एंड लास्ट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी. सो ऑल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. So you can see, everyone can see the pictures? Yes, ma'am. Okay, so you can see number 1, that is massage therapy. ठीक है, तो मसाज करने से मसाज के बाद पेशेंट की जो पेन लेवल है वो रिड्यूस हो सकता है. सो पेशेंट कैन टेल द मसाज ऑन एनी बॉडी पार्ट जहाँ पे पेन है. Then second is heat therapy by using heat applications, moist heat applications या dry heat application, that depends upon the patient. Then next is transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS, ठीक है, short form is TENS. It is a therapy which involves the use of low voltage electric current to treat pain. ठीक है, तो ये दिख रहा है white color है, square, these are patch. और we call it as electrodes. तो हम ये जहाँ पे पेन है, पेशेंट इन दिस पिक्चर पेशेंट इज हैविंग नेक पेन, है ना, नेक पेन हो रहा है, तो वी कैन पुट द पैड्स और द इलेक्ट्रोड्स ऑन द पेशेंट्स नेक. फिर उसके बाद ये एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, हम ऑन कर लेंगे. जब हम ऑन करते हैं तो एक लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से पेशेंट को हम हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं, सो दैट द पेन लेवल डिक्रीज हो जाएगा. देन नंबर 4, दैट इज डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन मेनी एक्टिविटीज आर देयर, जैसे आर्ट, है ना, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग, स्केचिंग, ठीक है, कुकिंग, स्टिचिंग, ठीक है. सो दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज. फिर आते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक, कैन बी योगा और इट कैन बी लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रेस्टिंग, ठीक है, बेड रेस्ट, दिस आर ऑल रिलैक्सेशन टेक्निक. फिर आते हैं नंबर 6, हिप्नोसिस. हिप्नोसिस यू कैन सी, ठीक है, हम एक छोटा सा वो लेते हैं, एक छोटा सा वॉच, ठीक है, फिर वी विल टर्न अपसाइड डाउन टू द पेशेंट. फिर क्या हो जाते हैं, जो पेशेंट की माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द पेन, ठीक है. सो द माइंड विल बी रिलैक्स, सो इट रिलैक्सेस एंड रीडायरेक्ट्स द अटेंशन फ्रॉम पेन. सो दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, ठीक है, हिप्नोसिस. फिर आते हैं नंबर 7, म्यूजिक थेरेपी. ओके, सो बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके, योर माइंड इज डाइवर्टेड फ्रॉम द पेन, ठीक है. सो you will feel better, okay, and you will have some comfort level. फिर आते हैं नंबर 8, दैट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी. तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं इसके अंदर. एक है एक्यूपंक्चर, ठीक है, एक एक्यूपंक्चर है और दूसरा है एक्यूप्रेशर.
एक्यूपंक्चर में क्या कहते हैं हम, नीडल्स, ये पिक्चर देख रहे हैं सबको, वी आर यूजिंग नीडल्स, ओके, वी आर इंसर्टिंग नीडल्स इनटू द पेशेंट्स बॉडी, जहाँ पे पेन है, मान लो मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड, ठीक है, वहां पे पेन हो रहा है, तो हम इफ आई गो फॉर एक्यूपंक्चर, सो दे विल यूज नीडल्स, ठीक है, स्मॉल स्मॉल नीडल्स होंगे, वो स्किन पे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है, सो दैट इज एक्यूपंक्चर। और दूसरा है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का मतलब है वी आर पुटिंग प्रेशर, ओके, बाय यूजिंग आवर फिंगर्स, ठीक है, वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट्स जहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स बाय गिविंग प्रेशर, सो दैट इज एक्यूप्रेशर, ठीक है। देन देयर इज माइंड बॉडी टेक्निक्स दैट विल इंक्लूड योगा, इट विल इंक्लूड लाइट एक्सरसाइज, ठीक है। फिर आते हैं कायरोप्रैक्टिस। कायरोप्रैक्टिस का मतलब है जैसे इट इज ऑल्सो लाइक अ मसाज, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है मसाज थेरेपी से। कायरोप्रैक्टिस में डॉक्टर्स दे विल डू सम exercise on the patient, okay, where they will put some pressure on the joint pains, कि जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे वो लोग प्रेशर यूज कर लेंगे एंड they will do some movement in the body, ठीक है, that is chiropractic. Then dance movement therapy. So dance movement is also a distraction, ठीक है, so by dancing, okay, by doing any activity, by singing, dancing, painting, these are all distraction. Then there is Tai Chi. Tai Chi is एक Chinese therapy होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, it is bringing mental peace, bringing diversion from the pain. Then there is aromatherapy, smell, ठीक है, there will be some fragrance, एक fragrance होगा जहाँ patients को बोलते हैं कि इसको smell कर लो, smell करने के बाद क्या हो जाते हैं उनकी, they will have some relaxation in the mind, ठीक है, तो उससे क्या होता है, mind divert हो जाते हैं pain से. Then there is energy healing, okay, so religious activity, ठीक है, religious healing that also can reduce pain by praying, by doing some religious activity on the patient. Then the massage also is under alternative therapy, okay. So these are the 8 popular alternative therapy to treat chronic pain, okay. So these are the alternative therapies. So is this clear with everyone? किसी को डाउट है with non-pharmacologic therapy? आंसू की कॉल ना मिल रही। हाँ बोलो, किसी को डाउट है, किसी को इश्यूज है रिगार्डिंग द टॉपिक? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, सो आई हैव कम। हाँ बोलो मैम, रहने दो, हो गया। हिप्नोसिस मैम देख रहा था मैम। अच्छा, हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, वी विल देयर विल बी अ पर्सन हु विल टेक अ स्मॉल यू कैन से अ क्लॉक और अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेंगे जहाँ वो ऐसे है ना, लेफ्ट एंड राइट ऐसे वो ही विल मूव द इंस्ट्रूमेंट अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। सो वी विल टेल द पेशेंट टू लुक एट दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो क्या हो जाते हैं, जो उनके माइंड है वो इट विल गो इनटू दैट स्टेट, ठीक है, इट विल गिव रिलैक्सेशन टू द पेशेंट, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पेन से, ठीक है। सो दिस विल गिव सम कंफर्ट टू द पेशेंट। इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? यस मैम, यस मैम। ओके।